everyone. Today we start CPM. Okay, that is critical path method. Okay, this is the first example of the CPM method, and the question is that consider the following given data and based on it find out the critical path for the given project. Okay, also we have to we find it total float. Okay, so we find all the floats and the critical path. The activities are given as 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6 and 5 to 6. Okay, so these are 1 dash 2 1 dash 3 is called activities, and that completion of that activity. Okay, there are particular time duration. Sometime is time duration is in week or in hours or in days. Okay, so each activity has a different time duration. Okay, so this is 1 to 2 for completion of activity 1 to 2. The time of that activity is 6 days. Okay, so let's start how we draw the network diagram. Okay, so first activity 1 to 2. Okay, this is 1 to 2, so we write one circle and write then 1, take one arrow and going to 2. Okay, so 1 to 2, and time duration of that activity is 6. Okay, the second activity is 1 to 3. Okay, so 1 to 2 is as same it is, and second activity is 1 to 3. Third activity is 2 to 4, so we write one arrow from 2 to 4, so this is 2 to 4. The next activity is 3 to 4. Okay, so here 1 to 2, 2 to 4, 1 to 3, इतना हो गया है. नाउ वी गोइंग टू 3 to 4. ओके, 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम लोग सिर्फ एक एरो ड्रॉ करेंगे विच इज कमिंग फ्रॉम 3 to 4. ओके, द नेक्स्ट activity is 3 to 5, so there is another activity coming from 3 to 5. Okay, next activity 2 to 6, so here it is 2, but there are some problem to 2 to 6. if we write 2 to 6, तो अगर हमने ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये 4 वाला जो है उसको नीचे लेना पड़ेगा. सो 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4. ओके, एंड 3 to 5. देयर आर द एक्टिविटीज हमने पहले ड्रॉ कर दी है. द नेक्स्ट एक्टिविटी 2 to 6, सो इट इज 2 to 6. एंड द लास्ट एक्टिविटी 4 to 6. ओके, 4 to 6, 5 to 6. सो 6 पे और दो एक्टिविटी आने वाली है 4 और 5 में से. ओके, सो 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, then 2 to 6, 4 to 6 and 5 to 6. And here we write 6, 9, 3, 4, 8, 12, 7, 1. These are the time durations. Okay, जो भी एक्टिविटी कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम हमने ऊपर लिख दिया है. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द फ्लोट. Okay, these are the floats. फर्स्ट दिस इज द एक्टिविटी. ओके, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे EFT. सो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से. ओके, फिर सेकेंड एक्टिविटी है 1 to 2. सो 1 to 2 में टाइम ड्यूरेशन कितना है 6, सो वी ऐड 6 plus 0, 6 plus 0, सो वी राइट हियर लेफ्ट कोऑर्डिनेट 6. सेकेंड एक्टिविटी है 1 to 3, हियर इट इज 0, 0 plus 9, 9, so we write left coordinate 9. Okay, then next activity, third one is 2 to 4, and then fourth one is 3 to 4. Okay, there are two activities are going from to 4. तो हम लोग को चेक करना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर मैक्सिमम हो रहा है. तो यहाँ पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट मीन्स EFT कितना है 6. ओके, दिस इज अवर EFT. ये कितना है 6.
6 प्लस 3 कितना होगा 9, यहाँ पे कितना है 9, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, सो 13 इज मैक्सिमम, सो वी राइट हियर 13. ओके, सो एट द इवेंट 4 वी राइट लेफ्ट कोऑर्डिनेट 13. okay, this is our EFT of activity 4. Now the next activity is 3 to 5. So here it is 9, 9 plus 8, 17. Now the last event that is 6. वहाँ पे 3 एरो जा रहे हैं, एक 2 में से, एक 4 में से और एक 5 में से. ओके, सो इफ वी गोइंग फ्रॉम 2 there are EFT is 6, 6 plus 12 that is 18. Here it is 13, 13 plus 7 is 20, and here it is 17, so 17 plus 1 is 18. So maximum number is 20, which is 13 plus 7 is equal to 20. So we write here 20. Okay, these left coordinate are known as EFT, earliest finished time. Okay, now पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, मीन्स हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ से स्टार्ट करने वाले इट इज़ 20 में से हम लोग को जाना है 5 पे, 4 पे और 2 पे. सो माइनस करना है और पूरा उल्टा है प्रोसीजर. वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लिखते हैं EFT में, तो LST में हमें मिनिमम लिखना है. सो 20 माइनस 1 सो 19, 20 माइनस 7 दैट इज़ 13, 20 माइनस 12 दैट इज़ 8. ओके, नाउ एट 3 देर आर 2 एरोज. ओके, एक 3 to 4 है और दूसरा 3 to 5 है. सो लेट्स हैव टू चेक विच वन इज मिनिमम. ओके, सो 19 माइनस 8 दैट इज 11, 13 माइनस 4 दैट इज 9. सो 11 और 9 में 9 मिनिमम है, सो वी राइट हियर 9. ओके, सो 13 माइनस 4 इज 9. Similarly at 2 there are 2 activities. First one is 20 minus 12 that is 8, and second one is 13 minus 3 that is 10. So 10 और 8 में 8 minimum है, so we have to write here 8. Okay, now at 1 there are also 2 arrows. So 9 minus 9 0, and 8 minus 6 that is 2. So 0 is minimum, so we write here 0. Okay, this is the LST. Okay, which is known as LST. ओके, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. ठीक है, नाउ एट वेयर द फ्लोट्स आर 0 दैट इज द क्रिटिकल पाथ. जहाँ पे फ्लोट 0 होता है वो आपका क्रिटिकल पाथ बनता है. तो यहाँ पे फ्लोट कहाँ पे 0 हो रहा है, तो जहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम है वहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम है. इसका मतलब क्या है कि LFT और EFT सेम है वहाँ पे. LFT और EFT सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोट का फॉर्मूला रहता है LFT माइनस EFT. इसका मतलब जो दो कोऑर्डिनेट है उसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर आंसर 0 आया सो डेट इज़ द क्रिटिकल पाथ. ओके, सो यहाँ पे इक्वल है, फिर यहाँ पे इक्वल है, फिर यहाँ पे इक्वल है, और डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल है. सो 1, 3, 4, 6 that are the critical path. Why? Because the coordinates are same. Otherwise EFT or LFT are the same at that point. Okay, so float of that point is 0, so there are the critical path. Understand? Now this one 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6. Okay, this is the critical path activities, and the critical path is 1, 3, 4, 6, and the critical time is what 20 days. जहाँ पे जितना लास्ट आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है, अगर डेज में तो डेज, वीक में तो वीक, आवर में तो आवर. ओके, सो नाउ वी फाइंड द फ्लोट. First write activities, all activities that are given in the question. Similarly the time duration of each activities. Now you find EST. EST कैसे लिखना है? So जो भी एक्टिविटी है उसका जो लेफ्ट मीन्स एक्टिविटी है 1, 2. ओके, दिस इज टेल एक्टिविटी, दिस इज हेड. ओके, दिस इज टेल इवेंट, एंड दिस इज हेड इवेंट. ओके,
जो लेफ्ट साइड है वो टेल इवेंट रहती है, जो राइट साइड है वो हेड इवेंट रहती है। तो जब EST लिखना है आपको तो टेल इवेंट चेक करनी है। टेल इवेंट कितनी है, 1 to 2 एक्टिविटी की 1। तो हम लोग को है ना नेटवर्क डायग्राम में 1 पे जाना है, 1। वहाँ पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट कितना है 0, सो राइट हियर 0। सेकेंड एक्टिविटी है 1 2 3, तो उसमें टेल एक्टिविटी कितनी है 1, तो 1 पे जाना है, उसका लेफ्ट कोऑर्डिनेट मीन्स EFT कितना है 0, सो यहाँ पे लिखना है 0। फिर 2 to 4, तो 2 to 4 में लेफ्ट कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पे जाओ, कितना है 6, सो राइट हियर 6। सेकेंड नेक्स्ट है 3 to 4, 3 to 4 में टेल इवेंट है आपका 3, सो यहाँ पे जाओ 3 9, सो यहाँ पे आएगा 9। यहाँ पे भी 3 to 5 है तो 9 ही आएगा क्योंकि टेल इवेंट 3 है। फिर है 2 to 6, 2 पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट कितना है 6, सो यहाँ पे लिखो 6। नेक्स्ट है 4 to 6, 4 to 6 में टेल इवेंट है 4, सो यहाँ पे आएगा 4 पे है कितना 13, सो राइट हियर 13। 5 to 6 पे 5 पे जाते हैं, 5 पे कितना है 17, सो राइट हियर 17। ओके, दिस इज द EST। नाउ EFT इज इक्वल टू व्हाट, द ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन प्लस EST मीन्स 6 + 0 9 + 0, 3 + 6 4 + 9 9 + 8 17, 12 + 6 18। ओके, दिस इज द EFT। नाउ LFT इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग पूरा रिवर्स जाएंगे, ये रहा 20 है तो 6 यहाँ से स्टार्ट करें 1 to 2, 1 to 2 में हेड इवेंट कितना है 2। ओके, सो 2 पे जाएंगे और राइट कोऑर्डिनेट देखेंगे, 2 पे जाएंगे और राइट कोऑर्डिनेट कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर जाएंगे 1 to 3, तो हेड इवेंट कितनी है यहाँ पे 3, सो 3 पे कितना है 9, सो 9। यहाँ पे 2 to 4, 4 का देखना है 13, यहाँ पे भी 4 का ही देखना है 13। फिर यहाँ पे कितना है 3 to 5, सो 5 पे देखना है कितना है 19, सो 3 to 5 पे है 19। फिर 2 to 6, 4 to 6 और 5 to 6, तीनों में हेड इवेंट 6 है तो सिमिलर आएगा, कितना आएगा 6 पे राइट कोऑर्डिनेट 20, सो राइट हियर 20 20 20। ओके, नाउ LST फाइंड करना है। LST कैसे फाइंड करेंगे, LFT माइनस टाइम ड्यूरेशन। LFT मीन्स 8, टाइम ड्यूरेशन 6, सो 8 - 6 दैट इज 2, 9 - 9 0, 13 - 3 10, 13 - 4 9, 19 - 8 11, 20 - 12 8, 20 - 7 13, 20 - 1 19। ओके, दिस इज योर LST। नाउ फाइंड टोटल फ्लोट। ओके, सो टोटल फ्लोट कैसे फाइंड करेंगे, LFT माइनस EFT। LFT इज 8, EFT इज 6, 8 - 6 2, 9 - 9 0, 13 - 9 4, 13 - 13 0, 19 - 17 2, 20 - 18 2, 20 - 20 0, 20 - 18 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट फ्लोट इज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट फाइंड करना होता है। फ्री फ्लोट का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला रहता है टोटल फ्लोट, जो हमने फाइंड किया है टोटल फ्लोट, माइनस LFT माइनस EST ऑफ हेड इवेंट। ओके, सो एज फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्टिविटी 2 4 हम लोग ये एक्टिविटी पे जाते हैं, एक्टिविटी 2 4 में हेड इवेंट कितना है 4। ओके, तो 4 पे हम लोग जाएंगे, ये रहा आपका 4 पे जो कोऑर्डिनेट है 13 और 13, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 0। ओके, तो टोटल फ्लोट में से हमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 to 4 का टोटल फ्लोट कितना है, ये रहा टोटल फ्लोट 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे लिखा हमने 4, ये रहा 4 - 13 - 13 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, 4 - 13 - 13 दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 to 5 पे जाते हैं, ये रहा 5 पे टोटल फ्लोट कितना है 2। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना, कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट 17 है, राइट कोऑर्डिनेट है 19, तो 19 - 17 करेंगे तो कितना आएगा 2 को टोटल फ्लोट में से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 to 5 का टोटल फ्लोट कितना है 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0, सो यार राइट हियर 0। ओके, इस तरह से हम लोग फ्री फ्लोट फाइंड करेंगे। सिमिलरली वी फाइंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, IF मीन्स इंडिपेंडेंट फ्लोट। उसका फॉर्मूला रहेगा, जो फ्री फ्लोट हमने फाइंड किया है, फ्री फ्लोट माइनस LFT माइनस EST, ओके, ऑफ द ट्रेल इवेंट। सो यहाँ पे फिर से हम लोग 2 4 एक्टिविटी देखते हैं।
2 4 पे टेल इवेंट कितना है 2, तो हम लोग 2 पे जाएंगे, ये रहा 2 पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट है 6, राइट कोऑर्डिनेट है 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा, उसको फ्री फ्लोट में से सब्ट्रैक्ट करना है। 2 to 4 में फ्री फ्लोट कितना है, ये रहा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। ओके, इस तरह से हम लोग पूरी जो एक्टिविटी है उसका टेल इवेंट देखेंगे और टेल इवेंट पे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसको फ्री फ्लोट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट द इंडिपेंडेंट फ्लोट। एंड लास्ट है इंटरफियरिंग फ्लोट। इंटरफियरिंग फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, मीन्स ये रहा टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, 2 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, ओके दिस इज 0 0 0। ओके, इस तरह से हम लोग सारे फ्लोट फाइंड कर सकते हैं।